Good afternoon, all dear students. Myself, Harish Kumar, welcome you all in this online class. And I hope that everyone is fine at home during this corona pandemic disease. I wish best of luck for everyone. And today we'll explain The Little Match Girl, the story by Hans Christian Andersen. So let's focus on it. Dear students, I have already discussed about the summary of this story. समरी पहले ही आपको करा चुके हैं, और जिससे अभी समरी के बारे में कुछ पता नहीं है, देन द स्टूडेंट कैन वॉच द वीडियो ऑफ समरी. इसकी चैनल के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो समरी की भी. सो लेट्स स्टार्ट. It was bitterly cold. Snow was falling and darkness was gathering. Bitterly cold था, very cold, and snowfall हो रहा था, darkness was gathering मतलब अंधेरा भी होने वाला था धीरे धीरे. For it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve, and it was the moment of New Year's Eve. Means 31st December. न्यू ईयर वॉज कमिंग, नया साल आने वाला था. 31 दिसंबर की शाम थी, बहुत ठंड थी और अंधेरा भी था. In the cold and gloom a poor little girl walked, bareheaded and barefoot. And in this cold and gloom means darkness, a poor little girl was walking bareheaded. It means she had nothing on her head, and she didn't have slippers or shoes in her foots. उसके पैरों में ना तो चप्पल थी और ना सिर पर कोई कैप या फिर ढकने के लिए कोई भी कपड़ा था. और थ्रू द स्ट्रीट्स यानी वो सड़कों पर इधर उधर टहलती हुई घूम रही थी. एंड यू मस्ट नो दैट शी वॉज सेलिंग द मैचेस, एंड her father had told her that she had to sell the matches, otherwise he will beat her. उसको कह दिया था कि माचिस बेच कर आना है इतनी, अदरवाइज अगर बिना बेचे वापस आ गई तो पिटाई होगी. Her father was very cruel. She had been wearing slippers, it is true. It is true when she left home, but what good were they? जब वो घर से चली थी तो उसके पैरों में चप्पलें थीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं थी, उससे पहले. But what good were they? It means it was no use to wear these slippers. उन स्लीपर्स को पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं था. They had been her mother's, so you can imagine how big they were. The slippers belonged to her mother, so those slippers were very big and they can't be fit in her feet. उसके पैरों में चप्पलें फिट नहीं हो पा रही थी, इतनी बड़ी चप्पलें थी, उसकी माँ की थी इसलिए. The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. और जब वो लड़की स्ट्रीट पर इधर उधर चल रही थी और स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए जब वो चली, दो कैरेजेस यानी जो दो व्हीकल्स थे बहुत फास्ट स्पीड में मूव कर रहे थे. तो स्ट्रीट को बहुत जल्दी क्रॉस करने की वजह से उसकी एक चप्पल थी, वो मिली नहीं. One slipper could not be found and a boy had run off with the other. यानी एक चप्पल तो उसको मिली ही नहीं, एक चप्पल जो पैर में बची एक लड़का लेकर भाग गया. Saying that it would come in very handy as a cradle someday when he had children of his own. And the child said that he will make a cradle with the slipper for his children. उसने कहा कि जब आगे कभी चलकर मेरे बच्चे होंगे तो मैं इस चप्पल का एक झूला बनाऊंगा बच्चे के खेलने के लिए. क्रैडल यानी पालना बनाऊंगा. So now the girl didn't have the slippers or shoes in her feet,
उसके पैरों में कुछ भी नहीं था. So the little girl walked about the streets on her naked feet, which were red and blue with the cold. The girl didn't have shoes or slippers, और वो barefoot यानी नंगे पैर सड़कों पर चल रही थी, तो ठंड की वजह से रेड एंड ब्लू कलर हो गया उसके पैरों का. In her old apron she carried a great many matches. She was wearing an apron. एक एप्रन टाइप का फ्रॉक था जो पहनी हुई थी और उसमें बहुत सारी माचिसें रखी हुई थी. And she had a pocket of them in her hand as well. A packet of matches. उसके हाथ में भी एक पैकेट था बेचने के लिए. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. No person bought any match from her, and neither any person gave her any coin, rupee, anything. कुछ भी उसको किसी ने दिया भी नहीं और ना ही खरीदा. She crept along shivering and hungry, the picture of misery, poor little thing. Crept along मतलब रेंगती रही, चलती रही. Creep, third form of creep, and creep means to lie down on the street. यानी जो पेट के बल सरकते हैं, रेंगते हैं, उनके लिए creep वर्ड यूज होता है. Like snakes and lizards and reptiles जो भी हैं. crept मतलब धीरे धीरे मूव करती रही. shivering मीन्स ठंड की वजह से कांपती रही. एंड हंग्री द पिक्चर ऑफ मिजरी. उसको देखने से एक पिक्चर जो क्रिएट हो रहा था उससे लग रहा था. मिजरी मीन्स वेरी सैड कंडीशन. पुअर लिटिल थिंग, बहुत बेचारी सताई हुई एक छोटी सी लड़की है, ऐसा लग रहा था. द snowflakes fell on her long golden hair, which curled so prettily about her neck. snowflakes यानी ऊपर से स्नो गिर रही थी और उसके छोटे छोटे जो पीसेस थे वो snowflakes उसके बालों में गिर रहे थे. गोल्डन हेयर, और उसकी नेक के गर्दन के चारों ओर वो घुंघराले बाल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से नीचे गिर रहे थे. बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपीयरेंस नाउ. बट द लिटिल गर्ल डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अबाउट हर हेयर. अपनी ब्यूटी के बारे में, अपने बालों के बारे में या फिर अपनी सुंदरता के बारे में उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया. बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड. उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी. एंड शी वॉज ट्राइंग टू सेल हर मैचेस. क्योंकि अगर वो बिना मैचेस के घर जाएगी, बिना माचिस के, तो उसका जो फादर है बहुत क्रूअल है और वो उसको पिटाई करेगा अगर वो बेचकर नहीं जाती है. Lights were shining in every window and there was a glorious smell of roast goose in the street. तो गली में चल रही थी और जितने भी घर थे सभी बहुत डेकोरेटेड थे. लाइट्स वर शाइनिंग. और उस सेलिब्रेशन में, न्यू ईयर ईव के सेलिब्रेशन में सभी लोग अपने घरों में अलग अलग तरह के डिलीशियस फूड को बना रहे थे और जिसमें से रोस्ट गूज की उसे स्मेल आ गई. रोस्ट मीन्स जिसको हम भूनते हैं, तलते हैं, आग में भून लेते हैं, उसकी उसे स्मेल आई. गली में किसी घर में पक रहा होगा. फॉर दिस वॉज न्यू ईयर्स ईव एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. क्योंकि ये न्यू ईयर ईव था और वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रही थी. बिकॉज दिस न्यू ईयर वॉज नथिंग फॉर हर and the celebration was not for her. She was only thinking about selling the matches. जश्न क्या होता है, क्या खुशी होती है, क्या सेलिब्रेशन है, उसको उस लड़की को इस बारे में नहीं पता. She huddled down in a heap in a corner formed by two houses. Huddled down यानी नीचे बैठ गई पैरों को समेट कर. एक हीप यानी ढेर लगा होगा किसी चीज का. इन अ कॉर्नर फॉर्म्ड बाय टू हाउसेस, वेयर टू हाउसेस वर मेकिंग अ कॉर्नर. दो घरों के मिलने से कोना सा बन रहा था. वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड फर्दर आउट इनटू द स्ट्रीट. और उसके ऊपर जो छत रही होगी या उसका कोई स्लैब होगा या लिंटर होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ था.
जिससे ऊपर से उसे थोड़ी कवरेज मिल जाती स्नो से बचने के लिए, so that the girl may avoid the cold, and that is why she sat down in that corner. She did not go home because she is afraid of beating of her father, right? Then the other. But though she tugged her little legs up under her, she felt colder and colder. लेकिन उसने अपने पैरों को टग्ड कर लिया। टग्ड मतलब अपने नीचे पैरों को करके बैठ गई, पैर नीचे और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उस तरह से वो बैठ गई उस पोजीशन में, और तब उसे और भी ठंड लगने लगी। She did not dare to go home for she had sold no matches. Now see why she did not go home, because she had sold no matches. उसने कोई माचिस नहीं बेची, इसलिए वो घर पे नहीं गई। And earned not a single penny, एक भी सिंगल पैसा उसने नहीं कमाया। Her father would be sure to beat her. उसे डर था कि उसका जो फादर है जरूर पीटेगा। And besides, it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them. और एक रीज़न और भी था, उसने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगी तो वहाँ भी तो इस विंटर से बचने का कोई उपाय नहीं है। Because the roof above them and the wind whistled through that. क्योंकि उनके सिर पर जो छत थी छप्पर टाइप का था, और जहाँ बीच बीच से उसमें होल्स थे, उसके अंदर से हवा चलती थी। Even though the largest cracks were stuffed with straw and rags. उसमें जो क्रैक्स थे, जो होल्स थे बड़े बड़े, उनको स्टफ कर दिया था स्ट्रॉ से और रैग्स से। रैग्स यानी फटे चिथड़े कपड़े, स्ट्रॉ जो भी क्रॉप्स का रिमेनिंग पार्ट है, भूसा समझ लो या फिर जो धान का रिमेनिंग पार्ट होता है, उसके बंडल्स बनाकर होल्स में रख दिए थे। बट इट वॉज नॉट सफिशियंट बिकॉज देयर वर सो मैनी लिटिल होल्स थ्रू विच एयर वॉज पासिंग एंड मेकिंग द हट वेरी कोल्ड। जो हट थी बहुत कोल्ड हो रही थी, ठंडी हो रही थी। तो उसने सोचा घर पे जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मार खा लेंगे कोई बात नहीं, आराम से कम ठंड से तो बच जाएंगे। बट यहाँ तो दोनों चीज़ें उसको अपोज कर रही हैं घर जाने से, यहाँ भी ठंड वहाँ भी ठंड। लेकिन यहाँ रहेंगे तो शी विल नॉट बी बीटन। इफ शी रीचेज होम देन हर फादर विल बीट हर। Her thin hands were almost numb with cold. उसके जो छोटे छोटे हाथ थे बिल्कुल नम हो चुके थे, सुन्न हो गए थे ठंड से। If only she dared pull just one small match from the packet, strike it on the wall and warm her fingers. उसने केवल एक चीज़ डेयर करने की सोची, अगर वो काश डेयर कर पाती, एक छोटी सी माचिस को बाहर निकालना अपने पैकेट से, दीवार से रगड़ना और अपने आप को, अपनी उंगलियों को थोड़ा हीट देना, गर्म कर लेना। She pulled one out. Now see students, यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस इससे ऊपर भी हैं। Why the little girl not go home? Clear? Why did the little girl not go home? And what did she visualize when she lit first match, second match, third match, etc. तो यहाँ से क्वेश्चंस बनना चालू हो जाते हैं। She pulled one out scratch. यहाँ पर इस वर्ड को, this word has been written like this to make sure how the sound be like of the scratch of match, कैसी आवाज होगी। How it spluttered and burned. Spluttered यानी धीरे धीरे जली, जैसे माचिस रगड़ने के बाद धीरे धीरे साइडों से पूरी जल जाती है। And burnt. It had a warm bright flame like a tiny candle when she held her hand over it. उस माचिस को, एक स्टिक को जलाने के बाद उसने अपना हाथ ऊपर रखा उसकी फ्लेम के ऊपर, और वो एक छोटी सी कैंडल की तरह दिख रही थी। But what a strange light! But it was a very strange light.
It seemed to the little girl as if she was sitting in front of a great iron stove. उस छोटी सी माचिस की फ्लेम से उसे ऐसा लगा कि सामने कोई एक आयरन स्टोव रखा हुआ है, with polished brass knobs and brass ornaments. ब्रास नॉब्स, उसकी जो नॉब्स थी जिसको हम घुमाते हैं गैस को ओपन करने के लिए, चालू करने के लिए, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी से डेकोरेटेड था। ब्रासेस जिसको हम हिंदी में पीतल बोलते हैं, पीतल होता है ब्रास, पॉट्स भी बने होते हैं, इससे बर्तन बनते हैं, तो उससे डेकोरेटेड था वो। इट मीन्स द स्टोव वॉज वेरी ब्यूटिफुल, द फायर बर्न सो ब्यूटिफुली एंड गेव आउट सच अ लवली वार्मथ। उसने इमेजिन किया कि सामने एक स्टोव जल रहा है और उसकी जो फायर जल रही है बहुत ही लवली वार्मथ से मिली, हीट मिली उससे। Oh, how wonderful that was! That was very wonderful. The girl was thinking, सोच रही थी कितना wonderful है ये scene. The child had already stretched her feet to warm them. और उस लड़की ने उसको इमेजिन करके, स्टोव को इमेजिन करके अपने फीट आगे कर दिए जिससे उसे वार्मथ मिल पाए। To when out went the flame, the stove vanished, and there she sat with the burnt match in her hand. और जैसे ही वो माचिस की जो तीली थी वो बुझ गई, उसके बाद सब कुछ गायब हो गया। Vanished means disappeared. The stove disappeared from her view, and she was sitting in that corner with the burnt match in her hand. और उसके हाथों में बस वही थोड़ी जली हुई बुझी हुई माचिस रह जाती है। So this is the question, what did she visualize when she lit the first match? She visualized an iron stove which was beautifully decorated with brass ornaments, and its knob was made of brass, and the stove gave a very lovely warmth to the little child. तो ये एक आंसर बन सकता है हमारा। क्लियर? For today this is the explanation, and half of the part will be explained tomorrow, so be careful, and if there is any doubt about the video or any line, any paragraph, you can ask me, you can put down your comments in the comment box. Thanks for watching the video. Have a great day. Don't forget to subscribe the channel को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।